सो नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हमने इंट्रोड्यूस किया था 1 जुलाई 2017 से, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है इंडिया के अंदर, और इसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। इसका लेक्चर का आउटलाइन है जीएसटी क्या है और अभी डेवलपमेंट क्या हुआ। तो जीएसटी का 41st जीएसटी काउंसिल मीट था और उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबके अंदर ऑर्डर मैं ऐसे रखता था कि पहले रीसेंट डेवलपमेंट को डिस्कस करता था एंड देन वो कंसेप्ट को डिस्कस करते थे। बट यहाँ पे जब तक हम जीएसटी को नहीं समझेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि जीएसटी काउंसिल क्या है। तो पहले जीएसटी को एंड देन जीएसटी काउंसिल समझते हैं। तो ये एक वीडियो है जीएसटी रिलेटेड, इसको देख लेते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं। India is notorious for its complex tax system. It's almost impossible for new businesses and startups to understand the direct and indirect tax systems. This problem gets even more aggravated when constant changes are made to taxes with each financial year. But things change with the new goods and services tax, commonly known as GST. Let's take an example. Aditya would like to start a business in Delhi for which he needs raw materials from Beijing in China. While importing, it would first land at a port and then from there it would travel to the manufacturing center at Delhi via road passing through various states. Now, when Aditya starts analyzing the various taxes he needs to pay in the process of just transporting the material to his center, he will lose his mind. In fact, this happens with many budding entrepreneurs who want to give shape to their dreams but fail to because the complex tax structure in India is the biggest hindrance. First, he needs to pay a customs duty along with the shipping charges. It's fine up till this point. But to comprehend the complexity in the tax structure after this stage would drive anyone crazy. He would have to pay central and state governments 10 different taxes like central excise duty, service tax, VAT, central sales tax, octroi, etc. And not only this, he also would have to pay tax on taxes already collected by the government. To understand this, let's take a very simple example under the present tax system. A seller in Mumbai sells a product to a buyer in Nagpur. On top of the price of the product, VAT is being charged. Now the same product is to be sold from Nagpur to Chennai. The seller in Nagpur increases the price to gain profit. Now on top of the new price, including his profit, central sales tax, that is CST, is added. The price of the product for the buyer in Chennai will comprise of cost of the product plus VAT plus profit plus central sales tax. Don't you see the cascading effect of taxes here? So how does GST affect the taxation system? The goods and services tax promises to alleviate this problem among many others. GST is a consumption-based tax which is levied on sale, manufacture and consumption of goods and services at a national level. Only one indirect tax has to be paid by the trade and industry, and all other indirect taxes like sales tax, purchase tax, service tax, octroi, etc. will be absorbed in GST. Exports and direct tax like income tax, corporate tax, capital gain will not be affected by GST. GST would apply to all goods other than crude petroleum, motor spirit, diesel, aviation, turbine fuel, and natural gas. It would also apply to all services barring a few to be specified in future. The proposed tax system will take the form of dual GST, which is concurrently levied by central and state government. This will comprise of central GST, that is CGST, which will be levied by center, state GST, that is SGST, which will be levied by state,
Integrated GST, that is IGST, which will be levied by central government on interstate supply of goods and services. So who is going to pocket the taxes? In case of intrastate transactions, seller collects both CGST and SGST from the buyer. CGST goes to the central government and SGST goes to the state government. And in case of interstate transactions, IGST will be levied on interstate transactions of goods and services, and the tax gets transferred to the importing state. What would be the cost of the same product under GST system? Products sold from a seller in Mumbai to a buyer in Nagpur. CGST and SGST is to be added. Now again the same product is being sold from Nagpur to Chennai. This is an interstate transaction, so IGST will be applicable now. But wait a minute, isn't this tax on tax again? So here is the twist. A tax has already been paid on the product in the form of CGST and SGST. So the buyer in Chennai gets a tax credit. The IGST gets reduced with the amount of CGST and SGST. This prevents the buyer from paying tax on tax. So under the GST system, the drawback faced by the manufacturers and business class due to cascading effect of taxation and also complexity in comprehending indirect taxes has been removed to some extent. To learn more about GST, watch our तो ये जीएसटी था। तो अब हम समझते हैं जीएसटी को। टैक्सेशन दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स। जैसे कि अगर मैं 5 लाख रुपीज़ इनकम अर्न कर रहा हूँ तो मुझे 10% टैक्स देना है। 10 लाख रुपीज़ इनकम अर्न कर रहा हूँ तो मुझे 20% टैक्स देना है। तो जैसे जैसे मेरा इनकम चेंज हो रहा है वैसे वैसे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। सेम कॉरपोरेशन टैक्स है। इनकम टैक्स इंडिविजुअल के लिए होता है, कॉरपोरेशन टैक्स इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, कंपनीज के लिए होता है। लाइक XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको 35 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कॉरपोरेशन टैक्स देना है क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इंडिविजुअल मिस्टर ए है तो उसको इनकम टैक्स पे करना है। वेल्थ टैक्स, आपके पास कितना वेल्थ है। तो डायरेक्ट टैक्स डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर, आपके एसेट के ऊपर, और सबको डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करना है। जो उतने इनकम के ब्रैकेट में आएगा उसी को पे करना है। जैसे 5 लाख से नीचे जो भी अर्न कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ये यूनिवर्सल होता है। जैसे सॉल्ट मैं यूज कर रहा हूँ, सॉल्ट का प्राइस है 100 रुपीज और उसके ऊपर 10 रुपीज का टैक्स है। वेदर आप रिच हो, आप पुअर हो, आप किसी भी स्टेट में बिलोंग कर रहे हो, आपको तो ये 10 रुपीज से टैक्स पे करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे पुअर को हमने एग्जेम्पशन दे दिया और रिच को हमने कहा कि यू हैव टू पे टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ग्रेडेड भी होता है। The more is your income, the more tax you have to pay. Say you are earning 5 lakh rupees, you don't have to pay any tax. Say you are earning 10 lakh rupees, you have to pay 1 lakh rupees tax. If you are earning 20 lakh rupees, you have to pay 3 lakh rupees tax. So more is your income, more is your asset, the more tax you have to pay. But indirect tax is universal. Whatever may be your income, whatever may be your status, doesn't matter. आपको टैक्स पे करना है तो करना है। सो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पे हम लगाते हैं, सर्विस पे लगाते हैं, सेल पे लगाते हैं। तो दो टाइप का टैक्स है। जीएसटी का बेसिक पर्पस था इंडिया में जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके और एक सिंगल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लेके आए। अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? जैसे से कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और वो मुझे 50,000 रुपीज फीस पे कर रहा है,
तो मैं जिस सेक्टर में इन्वॉल्व हूँ वहाँ पे मुझे 18% जीएसटी पे करना है। तो 50,000 का अगर 18% मैं देखूँ तो डेट इज 9,000। तो 9,000 मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा और रेस्ट मेरे पास बचेगा 50,000 माइनस 9, आई विल बी लेफ्ट विथ 41,000। 9,000 जब मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट सेंटर के पास जाएगा, एक कंपोनेंट स्टेट के पास जाएगा। जैसे अगर मैं स्टेट ऑफ दिल्ली के अंदर हूँ और सेंटर गवर्नमेंट, तो 9,000 में से 4.5 के सेंटर के पास गया, 4.5 के दिल्ली गवर्नमेंट के पास गया। अगर मैं गुजरात में हूँ तो 4.5 गुजरात के पास जाएगा, 4.5 दिल्ली सेंटर गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब 41,000 मेरे पास है, इसका मैं सपोज करो एसी परचेज करने जाता हूँ और इसमें से 30,000 का एसी परचेज करता हूँ। एसी के ऊपर 28% जीएसटी है, तो 30,000 का अगर मैं 28% देखूँ तो ये 8.4 होगा। तो ऑलरेडी 9,000 मैंने तो जीएसटी पे किया है और एसी का 8.4 थाउजेंड मुझे जीएसटी पे करना है। तो ये 8.4 मुझे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पे तो यहाँ पे किया है, दो बार पे करने की जरूरत नहीं है। तो नाउ आई हैव टू पे, तो यहाँ पे जस्ट मिनट, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, तो ये मुझे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो मेरे को अब जो है वो सिर्फ 6,600 रुपीज़ ही पे करना है। तो जीएसटी क्या होता है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम होता है। जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो गुड्स प्रोवाइड करता है, वही टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर मैं हूँ, तो डेट्स वाई मैंने कलेक्ट किया। यहाँ पे गुड्स प्रोवाइडर से मैं पैनासोनिक का एसी लेता हूँ, पैनासोनिक है तो उसने मेरे से कलेक्ट किया। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है, डायरेक्ट टैक्स के लिए भी गवर्नमेंट वर्क कर रहा है, वो डीटीसी है, डायरेक्ट टैक्स कोड है, बट अभी ये जस्ट एक सजेशन लेवल पे है। जीएसटी नहीं था उससे पहले क्या कंडीशन था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल, जिसके अंदर पावर डिवाइडेड है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइडेड है कि जो सब्जेक्ट सेंटर लिस्ट में मेंशन है उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, और जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। जीएसटी को जब हम लेके आए, इस लिस्ट के अंदर हमने कुछ चेंजेस किया, कुछ अपडेशन किया। 5 इंपॉर्टेंट टैक्सेस को हम कंसिडर करते हैं बिफोर जीएसटी। एक था एक्साइज ड्यूटी। यूनियन गवर्नमेंट ये टैक्स लगाता था क्योंकि ये 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट में मेंशन था। इंडिया में कुछ भी हम मैन्युफैक्चर करेंगे और उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसको एक्साइज ड्यूटी कहते थे। तो टैक्सेबल इवेंट इन मैन्युफैक्चर। दूसरा था सर्विस टैक्स, ये भी यूनियन गवर्नमेंट लगाता था। कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे जब जीएसटी नहीं था 1 जुलाई 2017 से पहले, तब मैं सर्विस टैक्स पे करता था, तो अब मैं जीएसटी पे करता हूँ। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। फिर उसका हो गया सेल टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स एंड सेंट्रल सेल टैक्स। तो वैट स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्पोज करता था। यूनियन लिस्ट के अंदर सीएसटी आता था, सेंट्रल सेल टैक्स, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता था। और कुछ भी हम स्टेट में सेल करते हैं, जैसे गुजरात में किसी को कुछ भी सेल करना है तो गुजरात गवर्नमेंट वैट लगाता था। सेंट्रल लेवल पे कुछ भी किसी को सेल करना है तो सीएसटी लगाता था। तो अब देखो आप, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है, वैट स्टेट गवर्नमेंट लगा रहा है। देन कस्टम ड्यूटी है। इंडिया में किसी चीज का भी हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे ये इंडिया का टेरिटरी है, तो एनीथिंग विच इज कमिंग टू इंडिया, एनीथिंग विच इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, तो एनीथिंग विच इज कमिंग इन इंडिया इज नोन एज इम्पोर्ट, एनीथिंग विच इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया इज नोन एज एक्सपोर्ट। तो इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाते थे और ये यूनियन गवर्नमेंट करता था। देन एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करता था किसी भी गुड्स का, जैसे कार
मध्य प्रदेश के अंदर एंटर हुआ तो मध्य प्रदेश एंट्री टैक्स लगाएगा, और इंटरटेनमेंट टैक्स, वहाँ पे कोई सर्कस हो रहा है या कोई ड्रामा हो रहा है तो उसके ऊपर इंटरटेनमेंट टैक्स लगाएगा। तो ये सब डिफरेंट कैटेगरी के टैक्स हैं, और भी बहुत सारे टैक्स हैं, बट ये 5 मेजर टैक्सेस हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारा था, कुछ स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करता था, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करता था, और जैसा आपने वीडियो में देखा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन हो जाता था। तो अगर प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है तो इसके ऊपर टैक्स 200 रुपीज़ का लग जाता था, और ये प्रोडक्ट का प्राइस 300 रुपीज़ हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा हुआ, बिजनेसमैन को भी लॉस है, कंज्यूमर को भी लॉस है। तो गवर्नमेंट ने इसको इम्प्रूव करने के लिए वो जीएसटी लेके आई, लेकिन जीएसटी के अंदर अब एक्साइज ड्यूटी है, तो इसके ऊपर सेंटर भी टैक्स कर सकता है, स्टेट भी टैक्स कर सकता है। वैट है, जो अभी तक स्टेट टैक्स करता था, इसके ऊपर सेंटर भी टैक्स करेगा, स्टेट भी टैक्स करेगा। तो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्टेट को कुछ अपना पावर देना पड़ेगा, टैक्सेशन का पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अपना पावर देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। सो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किया, और उस चेंज को 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा गया। क्या क्या चेंजेस किया हम आगे बताता हूँ आपको। तो इस तरीके से जीएसटी मूव करता है। से फॉरेन टेरिटरी है, वहाँ से कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है तो डेट इज IGST। सपोज वीडियो में यूएस से कोई प्रोडक्ट मुंबई में आ रहा है, मुंबई महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे IGST हम इम्पोज करेंगे। उसके बाद मुंबई में उसके ऊपर CGST और SGST लगाएंगे। तो C सेंट्रल GST, S मीन्स S स्टेट GST, तो क्योंकि ये महाराष्ट्र है तो इसके ऊपर महाराष्ट्र GST लगाएंगे। फिर जब महाराष्ट्र से ये गया से कर्नाटका में, तो फिर से इसके ऊपर CGST और SGST हम इम्पोज करेंगे। देन कर्नाटका से ये गया सपोज दिल्ली में, तो दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे UT GST आएगा, यूनियन टेरिटरी GST। तो इन शॉर्ट GST का 3 कंपोनेंट है, एक है CGST, दूसरा है S और UT GST, और थर्ड है IGST। सो CGST ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, SGST और जहाँ पे यूनियन टेरिटरी है UT GST ये पैसा स्टेट के पास जाता है। और जब 2 स्टेट के बीच में मूवमेंट होता है तो इंटर स्टेट मूवमेंट होगा, तो उसको वहाँ पे IGST इम्पोज करते हैं। तो जीएसटी का 3 कंपोनेंट, तो सारा टैक्सेशन सिस्टम को हमने रिप्लेस कर दिया बाय दिस सिंपल जीएसटी मैकेनिज्म। सो जीएसटी क्या है, तो वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। पहले जो टैक्स होता था वो सोर्स बेस है, जैसे पैनासोनिक है, पैनासोनिक का मुंबई में प्लांट है और वहाँ पे पैनासोनिक एसी मैन्युफैक्चर कर रहा है, और एसी का प्राइस पैनासोनिक ने रखा 10,000 रुपीज़। तो पैनासोनिक को यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी पे करना है मुंबई में, बिकॉज मुंबई में इसका प्लांट है। तो ये हो गया ओरिजिन बेस्ड टैक्स। फिर उसके बाद पैनासोनिक को ये एसी सेल करना है मुंबई में, तो मुंबई में इसको वैट देना पड़ेगा और मुंबई में सीएसटी देना पड़ेगा, सेंट्रल सेल टैक्स। तो वैट जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल सेल टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद मुंबई से लेके इसको गुजरात लेके आना है सेल करने के लिए। तो जैसे ही गुजरात के बॉर्डर पे आएगा, महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे, वहाँ पे इसके ऊपर एंट्री टैक्स लगेगा। सो एंट्री टैक्स जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। तो अब इन सबको हमने रिप्लेस करके पैनासोनिक के शोरूम से आप एसी खरीदते हैं तो वहीं पे आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अगर बिजनेस के टर्म में डेस्टिनेशन समझना है तो जहां पे कंज्यूमर बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करता है दैट इज नोन एज डेस्टिनेशन। एसी कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, कहाँ पे उसका गोडाउन है, कहाँ से आ रहा है, डजंट मैटर। पैनासोनिक का शोरूम अहमदाबाद में है, सो अहमदाबाद में जीएसटी का कलेक्शन होगा। अगर वो गुड़गांव में है तो गुड़गांव में कलेक्शन होगा। तो डेस्टिनेशन जहां पे कस्टमर इंटरैक्ट करता है बिजनेसेस के साथ, ये हर एक स्टेज पे अप्लाई होगा।
मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विसेज पे, सेल पे, हर एक स्टेज पे अप्लाई होगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, किसी स्टूडेंट ने मुझे 50,000 रुपीज़ दिया और इसमें से जीएसटी मुझे 9,000 रुपीज़ पे करना है, डेट इज़ 18%। उसके बाद जब मैं एसी परचेज करने जाऊंगा तो मैं कहूँगा कि एसी के ऊपर 8,400 का जीएसटी है, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी 9,000 पे कर दिया है, तो ये तो मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये मुझे नहीं पे करना होगा। लेकिन अगर जीएसटी नहीं होता तो शायद ये मुझे पे करना पड़ता। तो इट अप्लाई टू ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शन रखा है। तो कुछ गुड्स को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्टेड रखा है, लाइक पेट्रोलियम है, एल्कोहल है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट रखा है, जो वीडियो में हमने देखा था। Then some goods or services they are outside the purview of GST and transaction below threshold limit। अब ये threshold limit क्या होता है? जैसे से मेरा एक बिजनेस है, तो वॉट एवर आई एम अर्निंग 18% मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, बिकॉज माई बिजनेस इज एस्टाब्लिश बिजनेस। बट आज कोई अगर न्यू बिजनेस एस्टाब्लिश करता है, से कोई नया बिजनेस ओपन करता है, तो जब तक उसका 40 लाख का टर्न ओवर ना हो जाए तब तक उसको 1 रुपीज भी, तब तक उसको 0 रुपीज जो है वो टैक्स पे करना है, 1 रुपया भी पे नहीं करना है। तो जैसे मेरा अगर 40 लाख का बिजनेस होता है तो उसका 18% आई हैव टू पे 7.2 लाख टू गवर्नमेंट। बट अगर कोई न्यू बिजनेस स्टैब्लिश करता है तो 40 लाख तक उसको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, तो उसका 7.2 लाख तो बच जाएगा। जब 40 लाख के बाद 41 लाख हो गया, देन he or she has to pay taxes। So transaction below threshold limit you don't have to pay a single rupee। डुअल जीएसटी हैव टू कॉन्करेंट कंपोनेंट, एक है सेंट्रल जीएसटी जो सेंटर गवर्नमेंट लेवी करता है, कलेक्ट करता है, लेवी मींस इम्पोज करना। स्टेट जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता है एंड कलेक्ट करता है। Then CGST and SGST on intrastate supply of goods and service in India, that is within state। लेकिन एक स्टेट से मैं दूसरे स्टेट में जा रहा हूं तब IGST आ जाता है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया। जैसे पहले मेरे पास जो था वो जीएसटी था नंबर, वो गुजरात से मैंने लिया था। अब मैं दिल्ली में अपना ऑफिस ओपन करता हूँ और वहाँ पे जो भी मैंने परचेज किया, से मैंने एसी परचेज किया, प्रोजेक्टर परचेज किया, तो इन दैट केस अब मुझे IGST मिलता था, बिकॉज मेरा जीएसटी नंबर गुजरात का है एंड फिर मैंने दिल्ली से परचेज किया, तो IGST इंटरस्टेट हो गया, बिकॉज मैं गुजरात से दिल्ली में जाके मैंने परचेज किया। IGST इंपोर्ट पे भी एप्लीकेबल है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स या सर्विस को ट्रांसफर करते हैं। इंपोर्ट मीन्स यूएस से या चाइना से मटेरियल इंडिया में आ रहा है। एक्सपोर्ट के ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाते हैं, वो जीरो हमने रखा हुआ है। बट कुछ कुछ प्रोडक्ट है, स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसके ऊपर हम उसके ऊपर प्राइस फिक्स करते हैं और उसको एमईपी कहते हैं। एमईपी ऑन द सेम लाइन पे है जैसा एमआरपी है। से आप एक मैच बॉक्स परचेज करते हैं ग्रोसरी शॉप पे, तो उस पर लिखा होता है कि इसका एमआरपी 2 रुपीज़ का है, यानी 2 रुपीज़ से ज़्यादा में कोई रिटेलर अगर इसको सेल करेगा तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो वैसे ही होता है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। इंडिया से ओनियन को हमें एक्सपोर्ट करना है इन टर्की, तो कितने में हम कर सकते हैं? सो मिनिमम शुड बी 10 रुपीज़ पर केजी, उससे कम में नहीं कर सकते हैं। Additional 1% of interstate taxable supply of goods by state of origin and non-centable, centable means central VAT, वो नहीं होगा। तो जैसे कि अब 100 रुपीज़ का गुड्स मैं गुजरात से कर्नाटका में ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर 18% तो टैक्स लगेगा प्लस 1% और टैक्स लगेगा क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई का है। सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी में कवर होंगे, बट एल्कोहल कवर नहीं होगा। इसलिए आप देखना कि जब लॉकडाउन चल रहा था
तो स्टेट गवर्नमेंट के पास मनी का शॉर्टेज हो गया, क्योंकि कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कोई सर्विस एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अल्कोहल के शॉप को उन्होंने ओपन कर दिया और उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया। क्योंकि स्टेट को अगर पैसा मिलता है तो दो जगह से मैक्सिमम पैसा मिलता है स्टेट को, एक है अल्कोहल के सप्लाई से और दूसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सप्लाई से। तो पेट्रोल डीजल जो हम परचेज करते हैं, तो उसमें अगर आप बिल लेते हो तो बिल में ध्यान से देखना, उसमें होगा सेंट्रल एक्साइज टैक्स, उसमें सेल टैक्स होगा, वैट होगा, ये सब उसमें आता है। तो पेट्रोलियम और अल्कोहल मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, डेट्स वाई पेट्रोलियम और डीजल के प्राइस रेगुलरली इंक्रीज होते हैं, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट वैट जीएसटी के प्राइस को तो कंट्रोल कर नहीं सकता। क्योंकि जीएसटी में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने 5 स्लैब बनाया है, एक 0% है, एक 5% है, वन इज 9%, देन 12% एंड 18% और 28%। तो 0% में वो है जो एग्जेम्प्टेड है, देन 5, 9, 12, 18 और 28। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें प्लेस करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जैसे कोचिंग एक्टिविटी है, दे विल कम अंडर 28, दे विल कम अंडर 18, फर्नीचर एयर कंडीशनर है, दे विल कम अंडर 28। तो यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोलियम पे अल्कोहल पे ज़्यादा टैक्स लगाता है सो डेट उसका इनकम हो जाए। देन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फिर स्टैम्प ड्यूटी, तो ये सबको हमने जीएसटी से एग्जाम करके रखा है। तो सर स्टैम्प ड्यूटी क्या है? स्टैम्प ड्यूटी जो हम परचेज करते हैं, जैसे कि आप सपोज करो कि मैरिज का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है कोर्ट में, तो उसके लिए आप स्टैम्प खरीदते हैं ना, 300 रुपये का, 500 रुपये का, तो वो स्टैम्प ड्यूटी है। तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, वो सेंट्रल के पास नहीं यस सर, ओके। देन टोबैको प्रोडक्ट है, उसको भी हमने एग्जेम्प्ट करके रखा है। देन कौन से सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम हो गए, जीएसटी में मर्ज हो गया। तो एक है सेनवैट, सेनवैट का मतलब है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, या आप इसको सेंट्रल वैट भी कह सकते हैं। एक्साइज, देन एक्साइज ऑन मेडिसिन, कस्टम ड्यूटी, देन सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। टैक्स और सेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? गवर्नमेंट ने आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट उस इनकम टैक्स को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए। आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि सर आप जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, लेकिन गवर्नमेंट सेस कलेक्ट कर रहा है, जैसे स्वच्छ भारत सेस, तो गवर्नमेंट इसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए यूज करेगा, या एजुकेशन सेस है तो गवर्नमेंट इसको एजुकेशन के लिए यूज करेगा। तो सेस गवर्नमेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेता है, जैसे अभी जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है, यानी गवर्नमेंट ये पैसा कलेक्ट करके स्टेट को कॉम्पनसेशन देगा, वहां पे गवर्नमेंट इसको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। देन वैट, सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, परचेज, इंटरटेनमेंट, लग्जरी, एंट्री, लॉटरी, बेटिंग, सरचार्ज एंड सेस, ये सब स्टेट के टैक्सेस सब्सिड्यूम हो जाएंगे। यानी इन शॉर्ट कुछ प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सारे के सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो जीएसटी के अंदर सब्सिड्यूम हो गया, मर्ज हो गया। अब जीएसटी जब आया तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो अभी तक हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, कौन सा टैक्स जीएसटी में सब्सिड्यूम हुआ। तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। अमेंडमेंट का मतलब होता है एडिंग समथिंग इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, removing something from our constitution, and something which is existing in our constitution but we have to change it. So amendment means addition, subtraction or change in constitution. So 101st constitution amendment act 2016 के थ्रू जीएसटी को हमने implement किया इंडिया में। गुड्स मीन्स सारे के सारे मटेरियल कमोडिटी को इंक्लूड करेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 366 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्विसेज मीन्स सारे के सारे गुड्स को सबको इंक्लूड करेगा विच इज मेंशन इन आर्टिकल 366। तो इसका नाम है जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। लिस्ट 1 एंड 2, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट का है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट का है। 7th शेड्यूल में उसके अंदर हमने चेंजेस किया। जब भी कुछ ऐसा आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ
तो आप ये देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का है, तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा, कुछ ना कुछ एडिशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ हमने निकाला होगा। तो जब तक आप ये रिलेट नहीं कर पाते हो कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर चेंजेस हुआ, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो जब मैंने ये पढ़ा कि जीएसटी 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ, तो मैं ये ढूंढने लगा कि ओके, इसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस क्या हुआ। तो ऐसे अगर आप देखेंगे ना लॉजिकली, तो आपको याद भी रह जाएगा और बहुत आप फैक्चुअली काउंटर कर पाएंगे कोई भी आर्गुमेंट है तो। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये, क्योंकि अभी न्यूज में था, स्टेट गवर्नमेंट पहले वैट इम्पोज करता था, एंट्री टैक्स इम्पोज करता था, सेल टैक्स इम्पोज करता था, तो उससे उसके पास 10,000 करोड़ पर मंथ आता था। स्टेट को लगता था कि 10,000 करोड़ सफिशिएंट नहीं है, तो वो इसको इंक्रीज कर देता था, और अब टैक्स का रेट उसने इंक्रीज किया तो 15,000 करोड़ उसका अर्निंग हो गया। लेकिन अब तो स्टेट के पास ये पावर चला गया, क्योंकि अब कौन टैक्स इम्पोज कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकता है। तो स्टेट को जो लॉस हुआ रेवेन्यू का, उसको कहीं ना कहीं तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अग्री हो गई कि 2017 से हम जीएसटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इससे स्टेट को जो भी लॉस हुआ है तो उसको हम 5 साल में कॉम्पनसेट करने का ट्राई करेंगे। और ये पूरा जो लॉस है, समथिंग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का लॉस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्री किया कि स्टेट गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू में लॉस हो रहा है उसको हम कॉम्पनसेट करेंगे, और उस कॉम्पनसेशन के लिए हम जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड बनाएंगे। इसके अंदर पैसे को डालेंगे और स्टेट को कॉम्पनसेट करेंगे, और ये फंड होगा फ्रॉम 2017 से 2022 तक के लिए, 5 साल के लिए फंड होगा, और स्टेट को हम कॉम्पनसेट करेंगे। अभी हम 2020 में हैं, 20 अब एंड होने वाला है, हम सितंबर में हैं, और फिर 21 एंड 22। ऐसा कहा गया है कि इकोनॉमी 2021 में भी उतना इम्प्रूव नहीं करेगा जो कोरोना वायरस से पहले वाला कंडीशन था। शायद वो कंडीशन 2021 के एंड में हम अचीव कर पाए। तो 2022 तक तो गवर्नमेंट के पास इनफ पैसा ही नहीं होगा कि स्टेट के लॉस को कॉम्पनसेट कर पाए। तो ये एक डिस्प्यूट है अभी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर ये कहा गया कि हमारे पास एक जीएसटी काउंसिल होगा, जिसके लिए आर्टिकल 279 ए कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया। ये काउंसिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट करेंगे विद इन 60 डेज ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंप्लीमेंट होगा, उसके विद इन 60 डेज प्रेसिडेंट इसको कंस्टिट्यूट करेंगे। इसके अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू होंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? दैट इज निर्मला सीतारमन। यूनियन एमओएस अभी कौन है? तो दैट इज अनुराग ठाकुर। हर एक स्टेट के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होंगे, जैसे गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर, दिल्ली के, बंगाल के, तमिलनाडु के, एटसेट्रा। इसका मीटिंग हम तब बुला पाएंगे जब एटलीस्ट 50% मेंबर प्रेजेंट होगा, और उसको हम कोरम कहते हैं। जैसे कि अभी सपोज क्लास में 40 लोग प्रेजेंट हैं, तो मैं कहूँगा कि क्लास का लेक्चर तब कंडक्ट हो पाएगा जब एटलीस्ट 5 लोग प्रेजेंट होंगे, तो वो कोरम होता है। तो इसमें कोरम ये है कि 50% है, कि जितने भी टोटल मेंबर हैं उसके 50% अगर प्रेजेंट होंगे तब हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कोई भी डिसीजन इसमें लिया जाता है तो वो 75% लोग उसको सपोर्ट करेंगे, तभी वो डिसीजन पास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 100 मेंबर हैं, तो गवर्नमेंट कहता है कि इस बार हम जीएसटी का कॉम्पनसेशन नहीं पे करेंगे। तो अगर 100 लोगों में से 74 लोग इसको सपोर्ट करते हैं तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर 100 लोगों में से 76 इसको सपोर्ट करते हैं तो इम्प्लीमेंट होगा। तो डिसीजन 75% अगर मेंबर अग्री करते हैं तब होगा। जीएसटी काउंसिल के मेंबर में 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होंगे और 2/3 स्टेट गवर्नमेंट का मेंबर होगा, यानी 66.66% स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर एंड 33.33% सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर। जीएसटी काउंसिल का पर्पस क्या होगा? ये रिकमेंड करेगा कि कौन से टैक्सेस को हमें जीएसटी में सब्स्यूम करना चाहिए,
जीएसटी पे एग्जेम्पशन कितना रखना चाहिए, थ्रेशोल्ड कितना रखना चाहिए, थ्रेशोल्ड अपर लिमिट है, जीएसटी का रेट कितना रखना चाहिए, जीएसटी रेट का बैंड क्या होगा, रेंज क्या होगा, देन मॉडल जीएसटी, कुछ स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दें, और पेट्रोलियम को कब हम जीएसटी के अंदर लेके आएंगे। तो ये इसका फंक्शन है, ये प्रोसीजर कि कैसे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, और कुछ अगर डिस्प्यूट है स्टेट के बीच में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये पूरा जीएसटी का पर्पस है। अब जीएसटी का बेनिफिट क्या हुआ, तो अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक बेनिफिट है इजी कंप्लायंस है, क्योंकि एक ही टैक्स है तो इजीली कंप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीपल टैक्स होता तो कंप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता। टैक्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी है, रेट के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। जैसे पहले ऐसा था कि आपने वीडियो में देखा था कि चाइना से रॉ मटेरियल आता है मुंबई में, तो मुंबई में टैक्स पे करना है, मुंबई के बाद नागपुर जा रहा है तो नागपुर में टैक्स पे करना है, नागपुर के बाद तमिलनाडु में जा रहा है तो टैक्स पे करना है। तो ये मल्टीपल लोकेशन पे टैक्स पे करना होता है। तो अब ये कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, अब एक ही जगह पे आपको टैक्स पे करना है। गेन टू मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स, इनको फायदा होगा इससे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्या फायदा है, सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर है कि वो इजीली इसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कहीं पे लीकेज होता है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाईएस्ट रेवेन्यू एफिशिएंसी है, इजीली गवर्नमेंट अगर कलेक्ट करेगा टैक्स को तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, और गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटी को कैरी करेगा। कंज्यूमर के लिए क्या फ़ायदा है, सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स प्रोपोर्शनेट टू वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, कोई भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे अगर आपको याद होगा अभी से 10 साल पहले अगर आप कुछ गुड्स परचेज करने जाते थे तो वो दुकान वाला आपको पूछता था कि क्या मैं पक्का बिल बना दूं या फिर ऐसे ही दे दूं। तो पक्का बिल का मतलब टैक्स आपको देना पड़ेगा, कच्चा बिल मीन्स आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो अब जो हो गया वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट टैक्स रिजीम हो गया। अगर कोई अब टैक्स बचाता भी है तो उसको फिर नुकसान होगा और वो बाद में लायबल होगा फॉर पनिशमेंट। ओवरऑल टैक्स बर्डन में अब रिलीफ मिल गया, क्योंकि पहले जो सारे टैक्स को मैं कलेक्ट करूं तो वो होता था से 40%, अब जीएसटी आने के बाद ये कम होके 18% हो गया। जैसे कुछ लोग जीएसटी को अपोज करते हैं कि इस फील्ड में जीएसटी ज़्यादा है, इस फील्ड में जीएसटी कम है, लेकिन जीएसटी अगर आप ये देखो कि बाकी सारे टैक्स जो पहले होते थे उन सबको ऐड करो और फिर जीएसटी को देखो तो इनवेरिएबली जीएसटी कम ही है, लेकिन गवर्नमेंट को फिर भी कुछ जगह पे कम करना चाहिए। जैसे 28% टैक्सेस वो टू हाई है, मीन्स टैक्सेस शुड बी नॉट मोर देन 15% किसी भी फील्ड में, क्योंकि 15% से ज़्यादा हो जाता है तो वो अनबियरेबल हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए। तो ये हमने जीएसटी को देखा। अब हम देखते हैं रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ। रिसेंट डेवलपमेंट में 2020-21 फिस्कल ईयर है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट किया रेवेन्यू शॉर्टफॉल ऑफ 3 लाख करोड़, कि गवर्नमेंट के पास 3 लाख करोड़ कम रेवेन्यू आएगा। और इसका जब मीटिंग हो रहा था जीएसटी काउंसिल का तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने उन्होंने ये कहा कि जो कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी का कंडीशन है वो एक्ट ऑफ गॉड है, जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया गया और लोगों ने काफी सरकास्टिक कमेंट किया। तो 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, इतना गवर्नमेंट के पास कम पैसा होगा। 65,000 वो तो जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड से आ जाएगा, लेकिन बैलेंस बचता है 2.35 लाख करोड़। अब ये 2.35 लाख करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट को देना है, ये पैसा कहाँ से आएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, ये चीज को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं। तो 41st जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ, उसका एजेंडा था कॉम्पनसेशन पेएबल टू स्टेट एज द पार्ट ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। स्टेट ने अग्री किया था कि जीएसटी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो 2020-21 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 लाख करोड़ स्टेट को देना है।
जिसमें से 65,000 करोड़ जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड से आएगा, लेकिन 2.35 लाख करोड़ कहाँ से आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आर्गुमेंट टू सम एक्सटेंड सही है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रहा है तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। बट स्टेट को भी तो पैसा चाहिए अपना एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए, अपने जो स्टाफ है उनको सैलरी देने के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए। तो सेंटर ने स्टेट्स को एक सजेशन दिया कि आप एक काम करो, पैसे को बोरो कर लो। आप या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे ले लो, या तो आप मार्केट से डायरेक्ट पैसे ले लो, लोन ले लो। इस शॉर्टफॉल को टैकल करने के लिए हम बाद में आपको पैसे दे देंगे। तो स्टेट ने कहा, स्पेशली स्टेट ऑफ तमिलनाडु, पंजाब, उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों मार्केट से पैसे बोरो करें, ये पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें देना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट से पैसा बोरो करे और वो हमें दे दे। तो स्टेट ने कहा कि नहीं नहीं, हम पैसा मार्केट से बोरो करने वाले नहीं है, हम लोन लेने वाले नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा दे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और सजेशन दिया कि आप लोन ले लो। सपोज 2.35 लाख करोड़ का आप लोन लेते हो, उसमें 15,000 करोड़ इंटरेस्ट होगा, हम इंटरेस्ट पे कर देंगे बट लोन आप ले लो। तो स्टेट ने कहा कि नहीं, हम लोन नहीं लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये कंट्रोवर्सी कह सकते हो या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह सकते हो रिगार्डिंग जीएसटी। 41st जीएसटी काउंसिल मीट में हुआ था और इसलिए जीएसटी अभी न्यूज में था। तो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी। अब कुछ डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं।